Welcome to Ashchand Academy. My name is Aditya, and I'm here with you again with videos on famous books from Ashchand Publishing written by P.S. Verma and V.S. Agrawal. So these books are for a biology subject for class 9th, and we are constantly discussing about individual chapters one by one, point by point, और आप तक हम लेकर आ रहे हैं इनके सारी जो समरीज डिस्क्रिप्शंस हैं ताकि आपकी पढ़ाई, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन बुक्स को लेकर वो अच्छी हो सके. So we have already discussed about tissues, which was chapter 2 of this book, and we have considered some components, especially that of plant tissues. Plant tissues की बात हम कर चुके थे. अब इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करेंगे. अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक क्लिक कर सकते हैं और वहाँ आपको पिछले वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जो कि इस चैप्टर से एसोसिएटेड है. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज़. आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में जब प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे थे, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, तो हमने टिश्यूज़ के बारे में समझा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं. दे आर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ different cells. They may be of same type or of different type, but they have a common motive or a common function. उनका जो function है वो common होता है, and that is what a purpose of tissue is. So the very idea of development of tissue in the organisms is to divide the labor, or you call division of labor, जहाँ से ये chapter शुरू होता है. So with that we learnt about how different cells arrange themselves and they give rise to different kind of tissues, and we understood what different kind of plant tissues are known. At the same time, we also saw that animal tissues are much different than plant tissues. Animal tissues जो हैं वो plant tissues से काफ़ी अलग हैं. If you remember the points, one of the point was that animal tissues are more complex compared to the plant. Animal tissues are more diverse. And since animals have ability to locomote, क्योंकि animals जो है move कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो उनमें जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लांट के मुकाबले काफ़ी अलग होता है. तो यही इस वीडियो का मेन एजेंडा है, मेन डिस्कशन का टॉपिक है, जिसमें हम एनिमल के टिश्यूज़ की बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन. दिस इज़ द चैप्टर विच वी आर डिस्कसिंग, कंटिन्यूड फ्रॉम पास्ट फ्यू वीडियोज़, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़. Now we will start from this point. हम यहाँ से शुरू करेंगे. So just like plants, we have tissues in animals, and animal cells, animal tissues or animals as an organism are more specialized and more complex in terms of the physiological functions. So are their tissues. इसलिए उनके टिश्यूज़ भी जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. एनिमल टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, एनिमल टिश्यूज़ को सस्टेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. सेल्स आर कंपैरेटिवली मोर एक्टिव, एंड देयर आर फ्यूअर डेड सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज़. जहाँ प्लांट टिश्यू में काफ़ी बड़ा पोर्शन डेड सेल्स का भी होता है, जैसे कि बार्क और कॉर्क, लेकिन एनिमल्स के अंदर, एनिमल टिश्यूज़ में डेड सेल्स का कंपोनेंट बहुत ही कम होता है. सो विद दिस इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, something about a different type of functions that animals carry out has been given here. For example, animals have variety of functions, such as they have to circulate their gases, they have to circulate their nutrients across the body. So we have blood. Blood is also a type of tissue that might surprise you, but it is made up of cells and it has a common function. So obviously it fits well into the definition of a tissue. देन वी हैव टू लोकोमोट. हमें चलने के लिए मसल्स और बोन्स की ज़रूरत होती है, वो भी एक तरह के टिश्यू हैं. हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से कवरिंग की ज़रूरत होती है, एपिडर्मिस, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़ विच आर नोन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन एनिमल्स. उन्हीं की बात आगे की जाएगी. लेकिन इससे पहले कि हम आगे अपना डिस्कशन जारी रखें, एक क्विक लुक देख लेते हैं. लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन how we can classify these tissues, so that with the help of this chart it will be easy for us to follow rest of the chapter. हमको बाकी चीज़ें फॉलो करने में आसानी होगी. So इस चार्ट में आपको एनिमल टिश्यूज़ का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, just for the purpose of understanding, it has been given. They can be grouped into 4 important categories which you see here based on the functions, of course. So first category is called as epithelial tissue, which will have the function of providing cover or protection or outer covering.
not only outer covering in terms of the body, but also the covering of organs and other visceral parts. Then another tissue which is responsible for movement of the body called muscular system. Then we have another system called connective tissue, which is a predominant type of tissue system in the body, and connective tissue will have lot of variants. कई तरह के connective tissues हो सकते हैं, like areolar, adipose, skeletal, fluid tissues, या liquid tissue भी होता है, liquid connective tissue भी होता है. So blood will form that liquid connective tissue part. Skeletal system or skeletal connective tissue will be consist of cartilages and bones. Then areolar tissues and adipose tissues will also be part of our locomotory and storage systems. One of them is muscular system, जिसमें कई तरह की muscles होती हैं. 3 तरह की muscles के बारे में हम बात करेंगे, striated, smooth और cardiac, based on their appearance, इनकी appearance के basis पर. और फाइनली चौथे टाइप का जो टिश्यू सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स के केस में, दैट इज नर्वस सिस्टम. इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है. हालांकि प्लांट्स के पास सेंसिंग एबिलिटी होती है, ऐसा होता है कि वो चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, बट दे डोंट हैव दिस नर्वस सिस्टम. एंड इंस्टेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के एनालॉगस वहाँ पर जो कनेक्ट करने का काम करता है, देयर इज कोलेंकाइमा. एंड they of course don't need to there is no need to move or locomote, so they don't have muscular tissue. And in analogy to epithelial tissue की तरह उनके पास epidermis भी होती है. So this is the type of simple classification of animal tissues which we will elaborate further in the following text. आगे जो आने वाले पेजेस हैं उनमें हम इसी चार्ट को एलाबोरेट करेंगे. सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है एपिथेलियल टिश्यू से. इसको ब्रीफली हम एपिथेलियम भी कह सकते हैं. तो एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम इज अ काइंड ऑफ सिंपल कवर ऑफ एनीथिंग. कवरिंग है, एक लेयर है. जैसे आप अपनी बुक्स, जब आपका क्लास शुरू होती है तो सेशन शुरू होता है, तो आप क्या करते हैं, अपनी बुक्स पे कवर लगाते हैं, राइट? उस पे मार्केट से कवर लेकर, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे. तो ऐसे ही समझ लीजिए हमारी बॉडी पर भी एक कवर है, चाहे वो बाहर से एक कवर हो या अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर कवर हो. तो वो जो कवर वाली लेयर है, दैट लेयर इज मेड अप ऑफ सम टाइप ऑफ सेल्स एंड टुगेदर इट कॉन्स्टिट्यूट एपिथेलियल टिश्यू. ये हमारे शरीर का सबसे सिंपल टिश्यू है. इट इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू एंड इन जनरल इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर लेयर, or sometimes it is having multicellular layer, but the cells are very very simple and tightly connected to each other. एक दूसरे से tightly connected है. तो कहाँ कहाँ ये मिलता है? The skin and lining of buccal cavity, blood vessels, lung के अंदर जो alveoli होते हैं, kidney की tubules, epithelial tissue के ही बने होते हैं. So these are few examples which have been mentioned here. कुछ example हैं जो बताए गए हैं epithelial tissue कहाँ कहाँ present होते हैं. So either it may be made up of single layer of cells, या तो ये एक ही लेयर का बना हो सकता है, कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई सेल्स, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा. This will make a epithelial tissue. और some complex tissues like skin, हमारी स्किन की अगर बात करें तो स्किन में एपिथेलियल टिश्यू बनाने के लिए कई लेयर्स हो सकती हैं, क्योंकि हमारी स्किन पर वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है. तो एक ऊपर की डेड लेयर हो सकती है, फिर उसके नीचे और 2-3 लेयर्स हो सकती हैं. सो इट मे बी मल्टी सेलुलर और इट मे बी यूनिसेलुलर लेयर. कई लेयर हो सकती है, सिंगल लेयर हो सकती है. एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है किसी भी एपिथेलियल टिश्यू का? प्रोटेक्शन. लेकिन प्रोटेक्शन के अलावा हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के और भी कई काम होते हैं. जैसे एपिथेलियल सेल्स कभी कभी ग्लैंड्स का काम भी करती हैं, तो कुछ सिक्रीशंस भी वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. एंड ये वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में भी कभी कभी हेल्प कर सकता है. जो अंदर की तरफ एपिथेलियम होती है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर भी एक लेयर है ना, अंदर भी एक कवरिंग है. उस कवरिंग में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है. So that is what has been depicted here, and then we have at the end further subdivisions or further subtypes of epithelial tissue. अगर हम इस पेज पर नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि epithelial tissue के types बताए गए हैं. और वो types कौन कौन से हैं? Squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, glandular epithelium and ciliated epithelium. So if you want to recall them, if you want to understand them, you have to focus on these words
एंड यू हैव टू पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। अगर आप इन वर्ड्स को समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एपिथेलियम के जो टाइप्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है और दिखने में वो कैसे होंगे। एंड दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन दी सब्सिक्वेंट पेजेस। अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम की बात की गई है। स्क्वैमस क्या होती है? स्क्वैमस यानी कि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फाइन या थिन लेयर, सेल्स की एक सिंगल लेयर। तो अगर आप अपने चीक के अंदर की साइड देखें, इनर साइड ऑफ द चीक दैट हैज सम सेल्स कवरिंग है, अगर उसको थोड़ा सा भी स्क्रैप हो जाएगा, जैसे कभी आप गर्म दूध पी लेते हैं या कभी दांत से ही आपका चीक कट जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या है, तुरंत वो एपिथेलियम वहाँ से हट जाती है और उस सिचुएशन में आप नमक खा लेंगे या मिर्ची चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा लगता है। हैव यू एवर फेल्ट दैट, राइट? So that is because we easily erode and easily lose that thin epithelial layer and it is found at many places. ये हमारे ईसोफेगस में जो खाना खाने वाली ट्यूब है उसमें, या फिर ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसमें जो एपिथेलियम होती है वो इस तरह की सिंगल लेयर की बनी होती है, सिंगल सेल्स की बनी होती है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसका काम केवल प्रोटेक्शन होता है, इट जस्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। देन कभी कभी ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसके ऊपर केराटिन नाम का एक प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो स्किन में भी नीचे की तरफ जो स्किन है, अंदर जो स्किन है वो स्क्वैमस एपिथेलियम ही है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे चीक में स्किन होती है, लेकिन अगर चीक के तरह वाली जो स्किन है वो हमारे हाथ पे होगी तो डेली हमारे जो है ब्लड निकलता रहेगा हाथ में से, हमारे कहीं भी हल्का सा चोट लगेगी, कुछ भी होगा तो वो डैमेज हो जाएगी। So in order to provide utmost protection from the external agencies, there is a protein called keratin which is secreted in the outer part, and the outer cells of this skin is called as keratinized epithelial cell. So keratinized squamous epithelium, and stratified means it has multiple layers. That is the characteristic of human skin or skin of other organisms. तो इसमें बहुत सारी layers भी होती हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे अगर आप इस पिक्चर को पर्टिकुलरली देखेंगे, सो लेट मी एक्सट्रैक्ट आउट दिस पिक्चर फॉर यू so that you can see it more clearly. So you can see here the detailed picture of our skin and you will see that there are so many layers. ऊपर की तरफ एक लेयर है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, उसके नीचे स्ट्रेटम लूसिडम है, देन यू हैव स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम जिसमें कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं, फिर उसके नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम है जिसमें स्पाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और सबसे नीचे जो है स्ट्रेटम बेसेल है जिसमें कुछ ग्लैंडुलर सेल्स भी होती हैं और लगातार नई सेल्स को बनाने में मदद करता रहता है। तो हमारी जो स्किन है अगर हम उसको वर्टिकली कट करके देखेंगे तो उसमें कई लेयर्स हैं और ये सारा का सारा मिलकर क्या बनाता है, दिस मेक्स एपिथेलियल टिश्यू। ये सारा ही एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन ये हमारे चीक के एपिथेलियल टिश्यू से काफ़ी अलग है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट देर आर वेरिएंट्स, एपिथेलियल टिश्यू के भी वेरिएंट्स शरीर में मिलते हैं। सो another type of epithelium is called as cuboidal epithelium. Here the shape of cells will be cuboidal, unlike the squamous epithelium where the cells will be almost one dimensional, very thin and very smooth. Here the cells will be cuboidal. You understand cube, right? It is a three-dimensional structure which has length equal to width equal to height. So in reality the three-dimensional shape of these cells will be like a cube, and therefore the tissues which are made up of this or layer of cells which are constituting the epithelium will be called as cuboidal. And this cuboidal layer is found in so many visceral organs. हमारे शरीर के कुछ important organs हैं जैसे कि कई सारे glands including thyroid, salivary gland and sweat glands और gonads, reproductive organs like ovaries and testes. इन सब के अंदर जो cells होती हैं जो primary function करती हैं they are cuboidal epithelium. मतलब इनकी epithelium जो है thick होती है, मोटी होती है, and it is thick because it plays a role in excretion and secretion. ये दोनों काम भी होते हैं। A very similar type of epithelium to cuboidal, cuboidal की तरह ही एक और तरह की epithelium भी होती है जिसे हम columnar epithelium कहते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्यूबॉइडल में हमने देखा कि एक क्यूब की तरह सेल्स होती हैं, लेंथ विड्थ और हाइट उनकी बराबर होती है, लेकिन कॉलमनर की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इनकी हाइट ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली,
एंड दे विल बी लाइक कॉलम्स। आपने बिल्डिंग्स में देखे होंगे ना, जो कॉलम्स बनते हैं, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग्स का, उसमें कॉलम्स रहते हैं। सो वैसे ही कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स जो हैं उनकी हाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, एंड दे लुक लाइक कॉलम्स और पिलर्स। And the idea behind this shape or the usage of this shape in the particular type of tissues is that they provide more surface area. So suppose we are ingesting food, हमारे intestine में खाना गया, वहाँ पर जो अंदर की लेयर है वो एपिथेलियम है, लेकिन अगर वो स्क्वैमस होती या क्यूबॉइडल होती तो उतना एरिया नहीं मिलेगा एब्जॉर्ब करने के लिए। बट अगर वो कॉलमनर होगी तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे और ज़्यादा एरिया मिलेगा फूड को एब्जॉर्ब करने का। सो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू इलोंगेट दीज सेल्स इन द कॉलमनर फॉर्म, एंड दिस मेक्स अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम। देन इफ वी गो ahead, you can also find out the picture here which shows that how inside our intestine, अगर ये intestine है, if you cut it in the transverse, अगर आप इस ट्यूब को ऐसे कट कर दें, this is like intestine, and if you cut it from here, so internal part of this, इसके जो अंदर का पार्ट होगा, that will have some finger like epithelium which has been shown here, जिसको यहाँ दिखाया गया। So these are columnar epithelium, and they also secrete some secretions which help in digestion of food. Then finally this part of epithelial tissue ends here with a comparison between squamous and columnar, squamous which was consisting of flat cells and columnar which is consisted of columnar cells, उनका comparison दिया है। इन्हीं में से कुछ specialized cells होती हैं जो glands बन जाती हैं, like there are some columnar cells which also secrete some hormones, they make glandular epithelium। और कुछ cells ऐसी होती हैं, कुछ epithelium ऐसी होती हैं जिनमें hair like structures निकल आते हैं, maybe sometimes for protection from microorganisms or for movement of certain things, and that is called as ciliated epithelium. So ciliated epithelium may be found in the respiratory tract or maybe in the ovaries, जहाँ पर सेल्स के मूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में माइक्रोब्स आ सकते हैं, तो सीलिया के मूवमेंट से, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के मूवमेंट से माइक्रोब्स बाहर की तरफ फ्लश कर दिए जाते हैं। सो सर्टेन एपिथेलिया में ऑल्सो हैव दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। देन इफ वी गो अहेड, अगर हम और आगे चलें तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टिश्यू है, यू माइट बी रिमेंबरिंग, हमने 4 अलग अलग टिश्यूज़ की बात की थी शुरुआत में, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू। So second type of tissue here is muscular tissue, which is made up of muscles, जो हमारे शरीर की muscles हैं, जो हमें काम करने में मदद करती हैं, which contract rhythmically and we are able to move our limbs and body parts. That is all possible because of muscular tissue. So this muscular tissue is basically consist of 3 different type of cells. Not all of them are present at one place, but they might be present in different type of organs. अलग अलग तरह के ऑर्गन्स में अलग अलग तरह की मसल्स हो सकती हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। द नेम्स ऑफ दीज मसल टाइप्स हैव बीन गिवन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। रिमेंबर दैट entire muscle is a different thing and muscle tissue is a small part of it. So we might have variety of muscles, करीब 639 muscles होती हैं ह्यूमन बॉडी में। Biceps is one such muscle, so you must be familiar about it. Ciliary muscles which are present in eyes, that is smallest muscle. The gluteus maximus, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप बैठते हैं चेयर पर, that is the largest muscle of the body. So इसी तरह से बहुत सारी मसल्स हैं, और अगर आप मसल को एक माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, so one type of muscles will show striations. Striations का मतलब है कि उसमें आपको लाइनें मिलेंगी, डार्क एंड लाइट। You will get these kind of dark and light bands. Dark band, फिर light band, फिर dark band, फिर light band. So this is called as striation. And that's why the muscles which contain striations are called as striated muscles. These are the part of most skeletal system, जो हमें काम करने में जो muscles मदद करती हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से move कर पाते हैं, वो सारी muscles striated muscles होती हैं। Then comes another type of muscle called smooth muscles. So smooth muscles generally spindle shape की होती हैं, कुछ इस तरह से, उनके अंदर सेल्स ऐसी होती हैं और उनमें कोई स्ट्रिएशंस यानी कि ऐसे पार्ट्स, ऐसे बैंड्स नहीं होते हैं। और दूसरी बात,
जो स्मूथ मसल्स हैं वो हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। जैसे कभी आपको लगा कि आप अपनी किडनी की सेल्स को मूव कर सकते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टमक को मूव कर सकते हैं, स्टमक की मसल को आप मूव कर सकते हो अपनी मर्जी से? नहीं। तो वहाँ मसल्स हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत तो वहाँ पर है। फीमेल्स में यूटेरस है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बट इज इट पॉसिबल दैट वी कैन कॉन्ट्रैक्ट those muscles which are smooth in nature on our will? No, we cannot contract kidney muscles, we cannot contract our stomach muscles, and those type of muscles have different structure, different shape. They are called as smooth muscles. Now another type of muscle, a special type of muscle, are also found in our very important organ called heart. Heart is automatically rhythmic organ जिसमें मसल्स लगातार रिदमेटिक फैशन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। सो दीज मसल्स आर वेरी डिफरेंट, ऑल्दो दे हैव स्ट्रिएशंस जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स, बट दे ऑल्सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिनकी मदद से आप उन्हें पहचान सकते हैं, कॉल्ड इंटरकनेक्टिंग डिस्क या इंटरकैलेटेड डिस्क। सो मसल फाइबर्स विद इंटरकैलेटेड डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक मसल्स. Those which have striations like this are striated muscles, and those which are spindle shape are called as smooth muscles. So we have talked about all these three muscular types. तीन जो muscle के types हैं, you can find the description here, and more interestingly, if you will go at the bottom of this page, so here you can find a description of comparative description of smooth muscles, skeletal muscles and cardiac muscles. The points which we have already discussed, दे आर नॉट स्ट्रिएटेड, उनमें कोई स्ट्रिएशंस यानी कि डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होते हैं। स्केलेटल मसल्स में ऐसे बैंड्स होते हैं। कार्डियक मसल में आप देखेंगे तो इनमें आपको इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेंगी। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग फीचर्स जो हैं, इनका जो शेप है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस टेबल में कुछ चीज़ें कॉमन हैं स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में। जैसे दोनों ही स्ट्रिएटेड हैं, दोनों ही सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन फिर कैसे पहचानेंगे आपकी कोई मसल स्केलेटल है या कार्डियक है? सो यू विल लुक फॉर इंटरकैलेटेड डिस्क विच आर यूनिक हियर। देन इनका तो शेप ही अलग है, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं है, सो दे आर लाइकली टू बी स्मूथ मसल्स. बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट दीज आर मसल्स एट ऑल? यू विल लुक एट द एबिलिटी ऑफ दोज सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. जब ये सेल्स एक साथ होती हैं तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होते हैं. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मसल व्हिच इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम. सो दिस वाज वन पार्ट ऑफ द वीडियो. We'll be continuing learning about animal cells, tissues. एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उनमें किस टाइप की सेल्स होती हैं उसकी बात हम आगे भी करेंगे. अगर हम इस पार्ट को समराइज करें तो हमने देखा कि एनिमल टिश्यूज़ 4 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं. 4 तरह के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं. वन इज़ called as epithelial tissue, second is called as connective tissue, third is called as muscular tissue, and fourth one is called as nervous tissue. So we have already talked about epithelial and muscular tissue until now. हमने मसल के टाइप्स भी देखे और एपिथेलियल सेल के टाइप भी देखे. इस वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 ऑफ एनिमल टिश्यूज, उसमें हम रिमेनिंग 2 टाइप्स दैट इज कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू इनकी बात करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद अस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and you can find a link below in the description box if you want to get connected yourself with the next part or the second part of this video. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.